Students, today we have a very important topic from your grammar book, and the topic is notice. So students, a few days ago we learned how to write formal letters and we understood it properly, and today notice for the first time we are going to get introduced, so we need to pay full attention to understand it properly. So I expect you to listen to the video carefully, to watch it carefully, and in case any doubt left, do ask your teacher. Yes, so first let's understand what is notice. So notice क्या है? A notice generally is a displayed sheet or a play card giving news or information. So notice क्या होती है? Somewhere it is a formal communication which we make for a particular group. हम एक formal communication होता है, formal का मतलब है that is made for office purpose, जो हम अपने ऑफिस या स्कूल में करते हैं. सो उस कम्युनिकेशन को हम रिटन में जब करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो नोटिस होती है. एंड वो जो पीस ऑफ पेपर होता है या वो जो नोटिस होता है, इट इज़ displayed or pasted on the notice board. You must have seen in your school many notices pasted on the display board, जो बाहर soft boards होते हैं उस पर जो notice लगी होती है. Even in the classroom you must have seen your class teacher pasting the important notices for you all to let you know about the information जो आपको inform करने के लिए लिखी जाती हैं. Right, so notice writing today we'll learn. So what are the types of notices? First we'll see. So there are many types of notices like handbills. Handbills क्या होते हैं? The bills or the notice which is written by which is printed and distributed manually or by hand. अगर लोग notice लिख के अपने हाथों से उसको बांटते हैं लोगों के बीच में, so this is called handbills. पोस्टर्स भी नो, पोस्टर होते हैं, पोस्टर्स को भी हम नोटिस का ही पार्ट बनाते हैं. यू नो पोस्टर्स क्या होते हैं. ऑन द रोड यू मस्ट हैव सीन मैनी ऑफ द पोस्टर्स पेस्टेड और डिस्प्लेड ऑन द हाइट, और जो बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, उसमें लगा होता है पोस्टर्स. बुलेटिन्स होते हैं. बुलेटिन्स में क्या होता है, जो न्यूज़ होती है उसको हम, वो भी एक तरीके की नोटिस होती है. एंड एडवर्टीज़मेंट्स जो ऐड होते हैं, प्रचार प्रसार होता है, that also comes in the part of notice. And circulars आपने देखा होगा कि for teachers, for students and for employees many circulars are passed by the management. So management circular pass करता है to give an information among the people जो उनके organization में काम करते हैं. So these are the types of notices. Right, so you don't have to remember, you need to just understand. Here in the class we'll learn how to write a notice. ठीक है, but I thought of telling you about the types of notice, so I told you. Now let's see the next page. Notice होता क्या है? Notice, it is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or display information to a specific group of people. So जो notice होता है, it is a वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरीका होता है लोगों से बात करने का. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द नोटिस? टू अनाउंस, कुछ चीज़ को अनाउंस करते हैं और डिस्प्ले करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर ग्रुप, लोगों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम इन्फॉर्म करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में कोई नोटिस आती है, सो नोटिस अगर टीचर बोर्ड पे लिखवाता है या स्टिक करता है, चिपकाता है, सो दिस इज़ फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या हो गया? क्लास, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई है. जनरली दे आर मेंट टू बी पुट अप ऑन द डिस्प्ले बोर्ड्स इन schools और पब्लिक प्लेसेस. दे कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नोटिस होती है, इट इज़ रिटन in the schools, written by the schools for their students, for their employees, for their staff members, or they are put up on the board. जो board हो तो उस पर लगाई जाती है. एंड पब्लिक प्लेस में भी लगाई जाती हैं. आपने देखा होगा छोटी छोटी पेपर पे नोटिस लिखवा के लोग छपवा देते हैं दैट ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए.
या फिर कभी कभी कंपटीशन हेल्ड होते हैं तो लोग छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स में छपवा करके दीवारों पे लगा देते हैं फॉर द पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको छपवा देते हैं पेपर पर और दीवारों पे चिपकवा देते हैं। और इट कैन बी प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर में क्या होता है, आप इसको अगर नोटिस है तो नोटिस कैन बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, उसको पब्लिश किया जा सकता है। इट कैन बी फॉर पब्लिक, ठीक है। सो नोटिस, वी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द नोटिस। नाउ विल सी the information given in a notice can be regarding an event that is about to happen or has happened. So notice most of the time किस पर्पस के लिए होती है। पहला तो हमने समझ लिया कि हाँ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होती है। और इवेंट क्या होता है, क्या मुद्दा रखा जाता है। सो इवेंट इज़ अबाउट टू हैपन, हो सकता है वो नोटिस ऐसे किसी इवेंट के लिए हो, ऐसे किसी टॉपिक के लिए हो और ऐसे किसी फंक्शन के लिए हो जो कि होने वाला है या फिर हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम होने वाला होता है, देन आपके टीचर्स एग्ज़ाम के लिए नोटिस पहले भिजवा देते हैं। जब एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं तो हम उसकी नोटिस भिजवाते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, बच्चों को होमवर्क मिल रहा है। सो वो चीज़ जो होने वाली है उसकी सूचना देने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को या बच्चों तक पहुंचाने के लिए, या फिर वो चीज़ जो होने वाली है। सो दोनों बातें, जो घटना होने वाली है या कोई चीज़, कोई फंक्शन होने वाला है उसके बारे में, या फिर जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में हम नोटिस भेजते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डिंग एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन और मैसेज issued in public interest which requires attention. Yes, so कभी कभी अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गाइडलाइंस और कुछ संदेश, मैसेजेस होते हैं जो जनता के लिए होते हैं, गवर्नमेंट के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए होते हैं। सो कुछ स्कीम्स होती हैं या फिर कोई पर्टिकुलर नॉलेज इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है, तो वो हम एक पेपर पे छपवा देते हैं और या किसी पेज पर, और फिर हम उसको पब्लिक में बांटते हैं या फिर जगह जगह वॉल्स पे या फिर दीवारों पे लगा देते हैं। सो नोटिस का एक ये भी काम होता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो इज़ दैट हमें क्या क्या नोटिस में करना चाहिए। सो नोटिस में क्या होता है, एक टाइटल हो और एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टाइटल मतलब वो टाइटल मतलब किस जगह का है, या फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए किस पर्पस से हम लिख रहे हैं, एंड व्हाट द इवेंट इज़ अबाउट, उस घटना का नाम क्या है, या फिर वो किस घटना को या फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो उसका टॉपिक भी पता होना चाहिए। एंड देन व्हेन विल इट बी हेल्ड, और हमें ये भी उस नोटिस में ये भी बताना होता है कि ये जो प्रोग्राम है या फंक्शन है और जो भी इवेंट है वो कब होने वाला है, उसकी डेट, उसकी टाइमिंग हमें उस नोटिस में लिखनी होती है। और ये भी लिखना होता है कि ये इवेंट कहाँ पर हेल्ड होने वाला है, किस जगह पर इसको किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो हमें बताना होगा कि आपका जो एनुअल फंक्शन कंडक्ट होगा वो स्कूल का जो पार्क है या एडिटोरियम है या फिर स्कूल के बैक साइड पे कोई यार्ड है वहाँ पर है, तो उस जगह उस या फिर इस स्कूल में है, या फिर कभी कभी फंक्शन किसी और स्कूल में होते हैं, तो हमें उसके हिसाब से इवेंट की जो जगह होती है वो हमें उसमें लिखना ज़रूरी होता है। नेम ऑफ़ द इशूअर ऑफ़ द नोटिस, नोटिस कौन इशू कर रहा है उसका नाम लिखा होना चाहिए, और नोटिस में डेट मैंडेटरी होती है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है कि नोटिस लिखते हुए हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखते हुए नोटिस को लिखना है। नाउ विल सी द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है, किस वे में, किस तरीके से नोटिस को लिखा जाता है। सेम वी हैव नो डिफरेंट फॉर्मेट फॉर फॉर्मल राइटिंग, वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल राइटिंग। सो सबके जो लेटर राइटिंग होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन, सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तरीका होता है, राइट। सो हियर वी हैव अ फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग ऑल्सो। सो लेट्स सी। सो सी नेम ऑफ़ द स्कूल, जब भी हम नोटिस लिख रहे हैं सो नेम, स्कूल का नेम या फिर कोई भी जो भी लिख रहा है उस संस्था का नाम होना चाहिए। फिर नीचे हम नोटिस डालेंगे, फिर हम साइड में लेफ़्ट हैंड साइड में हम डेट डालते हैं, और फिर
नोटिस के ठीक नीचे इफ़ यू सी व्हाट द नोटिस इज़ अबाउट, फिर वहाँ पर हम नोटिस के बारे में लिखते हैं कि भाई नोटिस किस चीज़ के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोटिस फ़ी कलेक्शन के लिए, फ़ी के लिए जा रही है, तो यहाँ पर हम सेंटर पे लिखेंगे व्हाट द नोटिस इज़ अबाउट में रिगार्डिंग फ़ी, ठीक है। सो हम यहाँ पर सेंटर पे उसका नाम लिख देंगे कि उस नोटिस किस चीज़ के बारे में जा रही है। विल राइट इन द मिडल ऑफ द, suppose here what we have to do, wait, here we have to write the event name क्या है उस चीज़ का, and then what is the event when it is here. अब now the detail will be starting from here, this is the main body no of the notice में हमें लिखना होगा कि किस चीज़ के लिए नोटिस लिखी जा रही है, कब होगा, इवेंट कब होगा, कहाँ पर होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, हर चीज़, उसकी डेट क्या होगी, एवरीथिंग वी नीड टू मेंशन। और हमें इसके रिगार्डिंग किससे बात करनी, हर चीज़ हमें इस यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर जो नोटिस लिख रहा है वो अपना जो नोटिस लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पर, एंड डेजिग्नेशन, वो उस इंसान का डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है वो अपनी पोस्ट लिखेगा। अगर स्कूल में एग्ज़ाम के लिए नोटिस जा रही है सो ऑफ कोर्स यहाँ पर नाम किसका होगा, प्रिंसिपल सर या मैम का, और उनका डेजिग्नेशन वो क्या है, प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। सो यहाँ पर हमने उनका डेजिग्नेशन है, उनका काम क्या है, उनका पोस्ट क्या है वो हम लिखेंगे। सो नाउ okay, so this is all about this notice. Now just a minute, let me just wait, yes, now we'll see one question जो कि नोटिस के बारे में है, that is given in your book also. So question क्या है, अब हमें एग्ज़ाम में if it comes to write a notice about an event, so आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इफ़ यू सी हियर, you are the secretary of the sport club of your school. Write a notice in 50 words informing class 6 students that the team selections for the hockey team will be held on 15th of September in the hockey ground after school. So now this is the question. अब यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक स्कूल के जो सेक्रेटरी, स्पोर्ट क्लब के सेक्रेटरी हैं, सो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक छोटी सी नोटिस लिखें जो कि अप्रॉक्स 50 वर्ड्स की होनी चाहिए। सो मैक्सिमम 50 वर्ड्स की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है 40 to 50 हो सकती है, बट हमें 50 से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। सो हमें 50 कुछ लिमिटेड वर्ड्स में एक नोटिस लिखनी है एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट क्लब, क्लास 6 के या क्लास 5 के बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए कि हॉकी की टीम का सिलेक्शन हो रहा है जो कि 15 सितंबर को होगा, और कहाँ पर होगा, ग्राउंड में, जो हॉकी का ग्राउंड है या कोई स्कूल में ग्राउंड है, फील्ड है, प्ले ग्राउंड है, वहाँ पर इसका सिलेक्शन होगा। कब होगा, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ द सेम क्वेश्चन विल बी देयर, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बट इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड नाउ दिस इज़ द नोटिस। सो हियर जो क्वेश्चन था उस पर बेस्ड एक नोटिस है, एंड दिस आई हैव सेंट इन अ फॉर्म ऑफ PDF, सो यू नीड टू राइट डाउन इन योर कॉपी। सो दिस पेज ओनली यू हैव टू राइट डाउन। सो सी फर्स्ट स्कूल नेम, देन नोटिस, देन डेट लिखी हुई है, फिर टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, सिलेक्शन ऑफ हॉकी टीम। फिर जो बीच का बॉडी है नोटिस का उसमें क्या लिखा है, सिलेक्शन फॉर हॉकी टीम विल बी कंडक्टेड ऑन 15 सितंबर 2020 इन द हॉकी ग्राउंड आफ्टर स्कूल। Interested students from class 6 can give their names to sport representative. For the further details please contact the undersigned, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली वी डोंट राइट द नेम, ठीक है, हम अपना नाम नहीं लिखते हैं बिकॉज हम रियल पर्सन तो है नहीं। सो यहाँ पर XYZ ABC आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यू डोंट हैव टू राइट योर ओन नेम, अपना नाम नहीं लिखना है। फिर डेजिग्नेशन हमें इसलिए लिखना है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपका नाम भी दिया गया है कि मान अज्यूम दैट यू आर मिस्टर गुप्ता,
सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल। सो यहाँ पर हम मिस्टर गुप्ता जो भी नाम होगा यहाँ पर XYZ की जगह अपना नाम लिखेंगे, और मतलब जो सजेस्टेड नेम होगा जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वो नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में हमसे दिया गया है। इफ़ यू सी क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए लिखा है यू आर, यानी हमें कहा जा रहा है कि आप सेक्रेटरी हो। सो अब रियल लाइफ में तो नेम अगर मेरा निशा है तो मैं यहाँ पर निशा नाम नहीं लिखूँगी, क्योंकि इट्स नॉट द रियल नेम। आप किसी और का ना भी नाम लिख सकते हो, या आप ABCD डाल सकते हो, या कुछ भी XYZ कुछ भी लिख सकते हो, बट you don't need to write your own name. Right, so this is all about notice, students. I hope that you have understood, and in the beginning of the video, the class, I told you if you have any doubt, clear your doubt, right? Thank you so much.